آپ دیکھ رہے ہیں آزاد بول انڈیا کا ہیڈ لائنز شو۔ ذکر ہوگا ان بڑی خبروں کا جو آج سرخیاں بنی۔ آج ہے 23 جنوری 2025۔ میں ہوں عادل خان آزاد۔ دنیا کے سب سے بڑے اخباروں اور پورٹل سے چنی گئی سب سے بڑی خبروں میں آج آپ دیکھیں گے اسرائیلی فوج نے ویسٹ بینک میں 2 اور فلسطینیوں کی لی جان۔ لبنان سے نہیں نکلے گی اسرائیلی فوج، کہا اور وقت چاہیے۔ حوثیز کو امریکہ نے دہشت گردوں کی لسٹ میں ڈالا، یمنی لیڈر نے کہا لڑائی جاری رہے گی۔ پزشکیان کے منسٹر کا بڑا بیان، ایران میں نئی سرکار لائی بڑی تبدیلی، بنا سر ڈھکے گھوم رہی عورتیں۔ امریکہ کے لاس اینجلس کے قریب لگی نئی آگ سے جنگل اور پہاڑ ہوئے تباہ۔ یوکرین نے تیز کیے حملے، روس کا بڑا نقصان۔ سعودی عرب نے امریکہ کے لیے کھولی تجوری تو کان تک پہنچ گئیں ٹرمپ کی باتیں، بولے حبیبی ہم تمہارے ساتھ، گھبرانے کی کیا بات۔ اور سوڈان میں نوٹ بندی، بلیک منی پر نکیل کا دعویٰ، لیکن 15 لاکھ دینے کا نہیں ہے کوئی وعدہ۔ چلیے شروعات کرتے ہیں اس شو کی، اور سب سے پہلے کچھ بڑی خبریں لے لیتے ہیں۔ سب سے بڑی خبر تو یہی ہے کہ ویسٹ بینک میں اسرائیل کی فورسز کا آپریشن جاری ہے، اور اس آپریشن میں تازہ اپڈیٹ یہ ہے کہ 2 اور فلسطینیوں کی جان گئی ہیں۔ کچھ اور انپٹس آ رہے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے، لیکن ویسٹ بینک میں حالات خراب ہیں۔ جینن کی سڑکوں کو کھود کر ڈال دیا گیا ہے، لوگوں کا آنا جانا محال ہو گیا ہے، کئی اسپتالوں کو سیز کر دیا گیا ہے، ان کے راستوں کو سیز کر دیا گیا ہے۔ بیماروں کو اور ضعیفوں کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ کے لاس اینجلس شہر کے قریب ایک ہیوجز جنگل ہے، وہاں پر نئی آگ لگی ہے۔ اس سے بتایا گیا ہے کہ بڑی تباہی مچ رہی ہے۔ جب میں تباہی کہوں تو اس کا مطلب کچھ علاقے تک ہی محدود تباہی ہے، نہ کہ لاس اینجلس شہر میں آگ پہنچ گئی یا پورا امریکہ تباہ ہو گیا۔ میں اس طریقے کے ہوائی دعوے نہیں کروں گا۔ لاس اینجلس کے قریب نارتھ میں یہ آگ لگی ہے، ہیوجز نام کا جنگل ہے، اور اس آگ سے جو ماؤنٹینز ہیں لاس اینجلس کے نارتھ میں، جن پر پیڑ لگے تھے، پہاڑ ہرے بڑے والے جو پہاڑ تھے، وہ جل گئے ہیں، خاک ہو گئے ہیں، کالے ہو گئے ہیں۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر بڑی جد و جہد کرنی پڑ رہی ہے آگ بجھانے کے لیے، خاص طور سے جو کیسٹیک لیک ایریا ہے وہاں پر یہ آگ پھیل رہی ہے۔ بڑھتے ہیں سر آگے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ 100 دن میں وہ یوکرین کی جنگ رکوا دیں گے، اور اس کے لیے روس کو دھمکی دی۔ کل ہم نے آپ کو بتایا، آج بھی بتایا، کہ کہا ہے کہ ہم نئی پابندیاں عائد کر دیں گے ورنہ یوکرین سے سمجھوتا کر لو۔ اب یہ سن کر زیلنسکی بابو گدگد ہو گئے، انہوں نے اٹھا کر نئے طریقے سے تاڑ حملے کر دیے روس پر، بڑے حملے۔ وہ جو لانگ رینج میزائل انہیں امریکہ کی طرف سے ملی تھی اور باقی ویسٹرن ممالک کی طرف سے، وہ انہوں نے داغی ہیں پچھلے کچھ گھنٹوں میں، اور خوب بے حساب داغی۔ اس سے روس کا، پوتن کا بڑا نقصان ہوا۔ As Trump vows to end war, Ukraine's deep strikes weaken Russia. رشیا کو کمزور کر رہی ہیں یوکرین کی ڈیپ اسٹرائکس۔ یوکرین از اسٹرائکنگ رشین آئل ریفائنریز۔ اب یوکرین جو ہے وہ رشیا کی آئل ریفائنریز کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور وار پروڈکشن ود انکریزنگ سکسیس۔ وار پروڈکشن جو یونٹس ہوں گی جہاں بم، گولہ بارود، بندوق، یہ سب بھی بنتی ہوں گی، وہاں پر بھی حملے کر رہا ہے یوکرین۔ آئل ریفائنریز تو ویسے بھی کھٹک رہی ہیں۔ امریکہ کی ٹرمپ کی نظر میں انہوں نے کہہ دیا ہم سینکشنز لگائیں گے، نہ تم امریکہ کو مال بھیج سکو گے سستا، نہ دنیا کو ہم ٹیرفز اور ٹیکس اتنا بڑھا دیں گے کہ دوست تم گھٹ جاؤ گے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک بڑی خبر یہ ہے کہ لبنان سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا ہے فی الحال IDF نے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس نے کہا ہے کہ ہمیں اور وقت چاہیے، ہم نکل نہیں پا رہے ہیں، ہمارے پاؤں میں مہندی لگی ہے۔ 60 دن کا سیز فائر تھا، 26 جنوری کو ختم ہو رہا تھا، ابھی تک نہیں نکل پائے ہیں۔ ان کے مقصد ہی حل نہیں ہو رہے ہیں۔ ادھر حزب اللہ اس علاقے میں ہے ہی نہیں، وہ ان علاقوں کو چھوڑ کر پیچھے کی طرف چلا گیا ہے۔ یہاں یہ آزاد ہیں، جو چاہیں کر رہے ہیں، کوئی ان سے بدلہ نہیں لے رہا، نہ لیبنیز آرمی لے رہی ہے، نہ یونیفل نے کچھ کہہ رہا ہے، اور نہ گارنٹرز اس سیز فائر کے، اور نہ ہی حزب اللہ بھی فی الحال کچھ کہہ رہا ہے۔ اگر یہ 60 دن تک نہیں نکلے، جیسا کہ حزب اللہ نے کہا تھا کہ 61ویں دن کہانی دوست الگ ہوگی، تو کیا وہ 61ویں دن کچھ ہوگا؟ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ چلیے بڑھتے ہیں آگے۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یمن کے حوثیز یعنی کہ انصار اللہ موومنٹ کو دوبارہ فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا ہے، یعنی امریکہ کے مطابق حوثیز ٹیررسٹ ہیں۔ اس فیصلے کے بعد حوثیز پر وہ سخت اکنامک پابندیاں لگا دی گئی ہیں جو پہلے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دور میں لگائی گئی تھی اور پھر بعد میں ہٹا لی گئی تھی۔ یہ قدم حوثیز کے غزہ کی حمایت میں ریڈ سی میں کمرشل جہازوں اور امریکن وارشپس کے خلاف حملوں کے جواب میں اٹھایا گیا ہے۔
व्हाइट हाउस ने अपने एक बयान में कहा कि हाउथीज की सरगर्मियां मिडिल ईस्ट में अमेरिकन सिविलियंस और पर्सनल्स की सिक्योरिटी, हमारे सबसे करीबी रीजनल पार्टनर्स की सेफ्टी और ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड की स्टेबिलिटी को खतरा पहुंचा रही हैं। हाउथीज ने नवंबर 2023 से रेड सी में 100 से ज्यादा शिप्स पर, जहाजों पर हमले किए हैं और वो गजा में जंग के दौरान 2 जहाजों को डुबा भी चुके हैं। उन्होंने एक को कब्जे में भी लिया था, जिसके क्रू मेंबर्स को 14 महीने बाद कल ही उन्होंने आजाद किया है, जिसकी तस्वीरें हमने आज आपको सुबह भी दिखाई थी। इन हमलों की वजह से ग्लोबल शिपिंग पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई। व्यापार जो इस रास्ते से होता था रेड सी के, उसका भट्टा बैठ गया, जिसने 1 साल से ज्यादा अरसे तक कंपनीज को साउथ अफ्रीका के ज्यादा लंबे केप ऑफ गुड होप वाले रास्ते से जाने पर, और ये रास्ता महंगा भी है, उस तरफ से सफर करने की तरफ बाकी सारे जहाजों को डाइवर्ट करने पर मजबूर कर दिया। ये हाउथीज के एक्शंस की वजह से हुआ था, इसलिए ट्रंप ने उन पर ये एक्शन लिया है। उधर यमन से भी अमेरिका के इस कदम का जवाब आया। सना गवर्नमेंट के यमनी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन हाशिम शरफुद्दीन ने कहा कि अमेरिकन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अजीब कॉन्ट्राडिक्शंस और क्लियर फेलियर की जिंदा मिसाल है। हाशिम शरफुद्दीन ने कहा कि हम कभी टेररिज्म लिस्ट में होते हैं, कभी निकाल दिए जाते, फिर वापस डाल दिए जाते और फिर दोबारा हटा दिए जाते, और अब फिर हमें उस लिस्ट में डाल दिया गया। अजीब बात है मामू, ये क्या मजाक है। उन्होंने मजीद कहा कि कभी कभी अमेरिकन की चालों का बेहतरीन जवाब यह है कि उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए। इसके आगे शरफुद्दीन ने जो कहा है उसे जरा सुनिएगा। शरफुद्दीन ने दावा किया कि अमेरिकन हुकूमत जो इजरायली टेररिज्म में शरीक है, उसको यह हक नहीं है कि वो दूसरों को टेररिस्ट करार दे। उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं कि अमेरिकन ने पहले ही हम पर जंग का ऐलान कर दिया था, लेकिन हम मजबूत रहे, इंसाफ के लिए लड़े और अपनी सरजमीन और लोगों का दिफा किया। यमनी मिनिस्टर ने वजाहत की और ये तस्दीक की कि अंसार अल्लाह मूवमेंट अपने मिशंस पर फोकस करता रहेगा और अपने यकीन के लिए लगातार लड़ाई लड़ता रहेगा। सीरिया की बात कर ले रहे हैं। सीरिया की नई हुकूमत ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। सीरियन फॉरेन मिनिस्टर अस्साद हसन अल शिबानी ने कहा है कि मुल्क अपनी इकनॉमी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोल देगा और सीरिया गल्फ के तमाम ममालिक के साथ एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी पार्टनरशिप्स पर भी काम करेगा। शिबानी ने जनवरी की शुरुआत में सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर का मुख्तसर सा दौरा किया था। इसमें उन्होंने ताल्लुकात को मजबूत करने पर बातचीत की थी। सीरिया ये चाहता है कि सीरिया की नई रजीम ये चाहती है, अल जुलानी वाली, कि जल्द से जल्द सीरिया पटरी पर आ सके, उसकी तिजारत बाकी दुनिया के साथ शुरू हो सके, जो बशर अल असद के ज़माने में ठप पड़ गई थी। वेस्ट बैंक की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। जो हमने आपको शुरुआत में सुनाई वो ताज़ा खबर थी। स्थापित खबर यह है कि वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में इजरायली फोर्सेस को फ़लस्तीनी मूवमेंट से ज़ोरदार मुकाबला मिल रहा है। इससे आईडीएफ आराम से आगे बढ़ते रहना जो चाहती थी वो आसान नहीं रह गया है। अल मायदीन अखबार के मुताबिक वेस्ट बैंक के रेजिस्टेंस फाइटर्स ने इजरायली फोर्सेस पर बड़े हमले करके उनके मंसूबों को डेंट पहुंचाने का काम किया है। अल कुद्स ब्रिगेड्स की जेनिन ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि आज उनके फाइटर्स ने अल हिसान एक्सिस में एक इजरायली मिलिट्री व्हीकल पर आईईडी से धमाका किया, जिससे व्हीकल चलाने के काबिल नहीं रहा, उसके पर कच्चे उड़ गए। ग्रुप ने अल जबोनी या अल जलबोनी एक्सिस में भी सिजिल टाइप का एक आईईडी एक और मिलिट्री व्हीकल पर डेटोनेट किया। बताया गया कि यह भी थोड़ा सा लंगड़ाने लगा, मतलब चलने के काबिल ये व्हीकल नहीं रहा। अपने बयान में रेजिस्टेंस ग्रुप ने कहा कि अर्राबा और फहमा कस्बे जो जेनिन के मगरबी इलाकों को छूते हैं, वहाँ दुश्मन फोर्सेस के साथ शिद्दत से मशीन गन्स और होममेड बॉम्ब्स के साथ मुकाबला किया गया और एक ज़ायनिस्ट बुलडोजर पर आईडी डेटोनेट किया गया और यह भी वही नहीं रहा। सऊदी अरब ने इजराइल की जेनिन में वाक़या ज़ालिमाना हमले की शदीद मज़म्मत की है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपनी जिम्मेदारी निभाने और इजराइल की तरफ से लगातार हो रही इंटरनेशनल लॉज और ट्रीटीज़ की खिलाफ वर्जियों को रोकने का मुतालबा दोहराया है। सऊदी अरब ने खबरदार भी किया है कि अगर ये खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो इसका नतीजा लड़ाई और अफरा तफरी की शक्ल में तब्दील हो सकता है, जो मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के अमन और मासूम लोगों की हिफाजत को ख़तरे में डाल देगा और रीजन में अमन कायम करने की उम्मीदों को भी नाकाम कर देगा।
सऊदी अरब की बात हुई है तो दूसरी खबर भी वहीं से सही। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ममालिक की पार्टनरशिप को बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत की है। बुध की शाम एक फोन कॉल के दौरान क्राउन प्रिंस ने प्रेसिडेंट ट्रंप को उनकी इनॉग्रेशन पर, उनकी ताजपोशी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने मिडिल ईस्ट में अमन, तहफ्फुज़ और स्टेबिलिटी को मजबूती देने के लिए किंगडम और अमेरिका के दरमियान कॉपरेशन के तरीकों पर गुफ्तगू की और टेररिज्म का मुकाबला करने के लिए बायलैटरल ताउन को मजबूत बनाने पर भी बात की। अब आती है असल बातचीत। आप कहेंगे ये तो बड़ी अखबारी सी बातचीत है, इसमें बात की है, ये किया है, वो किया है। असल बातचीत हर खबर में होगी। असल बातचीत क्या है? पैसा फेंको और ताल्लुकात बढ़िया करो, साथ ही हिफाजत की गारंटी भी ले लो। क्राउन प्रिंस ने तस्दीक की कि सऊदी अरेबिया अगले 4 साल के दौरान यूएस के साथ, अमेरिका के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स और व्यापार को $600 बिलियन तक बढ़ाने का इरादा रखता है, और शायद इससे भी ज्यादा। एमबीएस ने कहा शायद इससे भी ज्यादा। $600 बिलियन कुछ नहीं, खाली बल्ली, इससे भी ज्यादा। $600 बिलियन की रकम सुनकर ट्रंप की बातें खिल गई, कानों तक पहुंच गई। ट्रंप ने भी किंग सलमान और क्राउन प्रिंस एमबीएस का शुक्रिया अदा किया और ये यकीन दिलाया कि वो दोनों कंट्रीज के फायदे के लिए काम करने को पुरजोश हैं। बोले वल्लाह हबीबी अंता मियां मियां, फिक्र नहीं, मुश्किल माफी। अब बात आती है ईरान की। ईरान के वाइस प्रेसिडेंट फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स मोहम्मद जवाद जरीफ ने सीएनएन के साथ एक इंटरव्यू में जो कहा है वो सुनिए। उन्होंने कहा कि ईरानी गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि उन औरतों पर प्रेशर नहीं डाला जाएगा, सजा नहीं दी जाएगी जो पब्लिक में अपने बाल नहीं ढकती हैं। जरीफ ने इस फैसले को एक सही कदम करार दिया था। याद है आपको हिजाब को लेकर कितना बवाल हुआ था ईरान में भी और हमारी मीडिया में भी। ये उसके उलट की खबर है। जरीफ ने कहा अगर आप तेहरान की सड़कों पर जाएं तो आप देखेंगे कि औरतें अपने बाल नहीं ढक रही हैं। यह कानून के तो खिलाफ है, लेकिन हमारी हुकूमत ने फैसला किया है कि औरतों पर दबाव नहीं डाला जाएगा बाल ढकने के लिए, सर ढकने के लिए। जरीफ ने कहा कि यह फैसला प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान का एक इलेक्शन प्रॉमिस था जो अब पूरा किया गया है। तो आपको ईरान में तब्दीली दिखेगी। ये गवर्नमेंट अपने आप को बड़ी रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट मानती है, इसलिए उन्होंने कहा है कि औरतों को ये हुकूक हैं हासिल कि वो अपना सर ढकना चाहती हैं या नहीं, उन पर पाबंदी नहीं होगी। ठीक है, औरतों का अपना फैसला है। तो बड़े आगे सूडान की बात करते हैं। सूडान में भी नोटबंदी हुई है, वैसे ही है। हालांकि वहां किसी ने हर अकाउंट में 15 लाख पहुंचाने का वादा नहीं किया है, कोई जुमला नहीं है, लेकिन सूरत हाल वही है जम्बूद्वीप वाली। पुराने ग्रंथों में भारत का नाम जम्बूद्वीप भी दर्ज है, इसलिए जम्बूद्वीप कहा। अक्सर इस नाम को बोलूंगा तो सुनिएगा और समझ लीजिएगा। सूडान की आर्मी से जुड़ी हुकूमत ने अपने कब्जे वाले इलाकों में नए बैंक नोट जारी किए हैं, जिसकी वजह से बैंकों के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं, कारोबार रुक गए हैं और अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई है। आपको लग रहा होगा कि 2016 की खबर सुन रहा हूं या सुन रही हूं, जैसा हुआ था कहीं पहले से ही जंग और सूखे का सामना करते मुल्क में सूडान में इस नोटबंदी से बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई। इस नोटबंदी के तहत 7 रियासतों में 500 और 1000 सूडानी पाउंड के बैंक नोट जो तकरीबन $0.25 और $0.50 के बराबर हैं, उन्हें नए नोटों से बदला गया। यानी 25 पैसे डॉलर के और आधा डॉलर उसके बराबर हैं इनके 1000 और 500 के नोट। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने इस कदम को कौमी माईशत की हिफाजत यानी नेशनल इकनॉमी की हिफाजत और जाली बैंक नोट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए ज़रूरी करार दिया है और कहा है कि इससे सब सुधरेगा, अच्छे दिन आएंगे। देखा उधर भी वही बातें चल रही हैं, लेकिन कई सूडानी लोगों के लिए ये सिर्फ मुश्किल का सबब बन गया है। मैं आपके लिए और मुश्किल का सबब नहीं बनूंगा और ख़बरों को यहीं फुल स्टॉप दूंगा। उम्मीद करता हूं आज का शो आपको पसंद आया होगा। बता दीजिएगा कौन सी खबर ज़्यादा अच्छी लगी, उसी मिजाज की और ख़बरें आपको दे देंगे। खुश रहिए, सलामत रहिए, मजलूम कोई भी हो दुआ करते रहिए।